ओम शांति। गुड मॉर्निंग। আজকের বাবার মহাবাক্য 4 জুন। আজকে বিশেষভাবে বাবা আমাদেরকে নিমিত ভাব কিভাবে আমরা নিজেকে নিমিত মনে করে ট্রাস্টি মনে করে সব কর্ম করতে হবে। যেভাবে বাবা নিজেকেই ট্রাস্টি মনে করেন, কেন কি সত্যযুগের মালিক আমরা ছিলাম, বাবা কিন্তু আজকেও মালিক নয়, আর সত্যযুগের মানে স্বর্গেরও মালিক হবেন না। বাচ্চাদেরকে সব কিছু দিয়ে আর নিজে বিশ্রাম করতে চলে যান। তারপরে বাবার পাঠ শুরু হয়ে যায় দ্বাপর যুগ ভক্তদেরকে মনোকামনা পুরা করার জন্য। এই জন্য বাবা বললেন যে আমাদেরকে এখন নিজেকে নিজে কিভাবে তৈরি করতে হবে, প্রত্যেকটা কর্মের মধ্যে নিজেকে ট্রাস্টি অনুভব করে করতে হবে। ট্রাস্টির কোনো সময় মোহ থাকে না। তো আমাদেরকেও যখন আমরা ট্রাস্টি অনুভব করতে পারবো, তখন আমাদের কোনো কিছুতে মোহ থাকবে না। কেন কি মোহ থাকলেই দুঃখ হবে, আর তার কারণটাকে বুঝে আমাদেরকে তৈরি করতে হবে এখন। তো শুনে নেই আমরা বাবার মহাবাক্য, যে বাবা আজকে আমাদের প্রতি কি আশা রাখছেন। তো বাবা বললেন, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा দুজন মিলেই মত দেন। মত মানা দুজনের বিচার। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। ये जन बोला है बाप दादा का मत, মানে বাপ দাদার মত অনুযায়ী চলে আমাদের নিজের কল্যাণ করতে হবে। प्रश्न, नंबर 1 ट्रस्टी कौन और कैसे? नंबर 1 ट्रस्टी कौन और कैसे? नंबर 1 ट्रस्टी के হইল আর কিভাবে ট্রাস্টি হইল? उत्तर है शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। इसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। শিব বাবা নম্বর 1 ট্রাস্টি কেন? কেন কি শিব বাবা কিছুতেই আসক্তি নাই। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो कुछ भी दान पुण्य आदि करते हो, भक्ति मार्गेও তো যত কিছু দান পুণ্য করলো সে তো ঈশ্বর নামেই তো করলো না, কিন্তু বাবার কোনো আসক্তি নয়। वह सब इंश्योरेंस हो जाता है। बाबा কাছে ইনশিওর করে দিই আমরা, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। এই সময় যারা ভক্তিতে করে তাদের অল্প হইলেও অন্য জন্মে ফল পাওয়া যায়। আর এখন আমরা যে করতেছি ডাইরেক্ট, তার ফল বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও আছে। আজকে দেখেন আমরা মানুষের হিসাবে বাবার বাচ্চারা অনেক সুখী। যতই পরিস্থিতি আসুক, যতই কিছু হোক, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যেগুলা হবে। আগে থেকে প্রিপারেশন থাকলে এত কষ্ট হয় না। তো আমরা তো জানতেই পারছি এগুলা না হইলে বা সিচুয়েশন খারাপ হবে, এটা দুঃখধাম। দুঃখধামে দুঃখ যদি না হয় তখন তো দুঃখধাম বলা যাবে না, না? তো এই জন্য বাবা এই জন্য বললেন কি তার ফলটা যারা ভক্তি মার্গে করে তাদেরও दूसरा মানে নেক্সট জন্মে বাবা কি করেন ওটাকে দিয়ে দেন, যার ভক্তির কিছু ফল হয়ে যায়। अभी भी जो बाबा के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उसका पूरा रिटर्न बाप देते हैं।
বাবার নামে যে কিছু করবে বাচ্চারা সব কিছু বাবা কি করছেন তার রিটার্ন দেওয়ার জন্য वर्तमानों दिच्छेन भविष्यते दिबेन। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं खुद तो सुख भोगता नहीं हूँ, बाबा तो कखनो सुख भोग करें ना, मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा, बाबा तो निजे ही हইলেন सुखदाता है ना। যখন দুঃখ পড়ে তখন কাকে স্মরণ করে, দুঃখকর্তা সুখকর্তাকে। তো বাবা আমাদের নিয়ে কি সুখ ভোগ করবে, উনি তো দাতা, দাতার বিধাতা কি নিবেন আমাদের দিকে, আমাদের কাছে আছেই কি যে আমরা দিব বাবাকে। যেটা করছে সে নিজের জন্য আর তার রিটার্ন কি করে দিচ্ছে। বাবা বললো না পুরনো দেই আমরা নতুন নিয়ে নিই, তো ভালোটা তো দেই না, কিন্তু রিটার্ন কি নেই, ভালোটাই নেই। गीत है दर पर आए हैं कसम लेकर, बाबा কাছে আমরা আসছি নিজেকে কসম নিয়েই আসছি না। ओम शांति। मीठे मीठे सिकले दे बच्चों ने गीत सुना, কতদিন থেকে আমরা বাবা থেকে দূরে ছিলাম, সেই বাচ্চারা এখন বাবাকে পেয়েছে, তো কত আনন্দ। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं, बाप ने समझाया है यह है अंतिम मरजीवा जन्म, अंतिम और मरजीवा जन्म, जन्मटा हইলো मरजीवा। जीते जी बाप का बनते हैं, আমরা এই শরীরে থাকেও বাবার হয়ে যাই। तो यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत भगवानोवाच, श्रीमत भगवानोवाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, गीताते कृष्णेर नाम डाले दीछे, परंतु शिव बाबा, उसके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण, सर्वप्रथम शिव बाबा, सेकेंड नम्बर हইলেন ब्रह्मा बाबा, और थार्ड नम्बर হয়ে গেল श्रीकृष्ण। किन्तु गीताते कार नाम दिए कृष्णर दिए दीछे। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रीमत जे हलो से श्रीकृष्णेर हलो ना, श्रीमत भगवानও আছে, भगवान আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মত দিয়েছেন। শ্রীমত মানে শ্রেষ্ঠ মত, যে মত দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে পারবো, শ্রেষ্ঠ পজিশন নিতে পারবো, সে কিন্তু ভগবানও আজ श्रीमत दिले। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप, पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। पतित पावन ना कृष्ण होते पड़े ना राधे होते पड़े, पतित पावन परम पिता परमात्मा निराकार, वह देवी गुण वाला मनुष्य। श्री कृष्ण तो होइले देवी गुण वाला मनुष्य, मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता, पतित থেকে কাউকে পাবন করতে পারবেন না। तो सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, सतयुगे এইভাবে বলবে না कि पतित पावन, अर्थात पतित থেকে পাবন মনুষ্য কেউ বানাইতে পারে না। पतित पावन आओ, आओ माना आसो, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसको श्रीमत पर तुम चल रहे हो, जिस बाप के श्रीमते আমরা এখন চলছি। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, ब्रह्मारो मत और परमपिता परमात्मा मत, परंतु इसमें भूल कर दी है। किसमें? जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्रीमत भगवानोवाच হইতে লাগে, সেইখানে শ্রীমত কৃষ্ণওয়াচ বলে দিল, মানে কৃষ্ণের নাম ডালে দিচ্ছে, বলার সময় কি বলে ভগবানওয়াচ, মানে ভগবান বলছেন। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है,
কৃষ্ণ को तो सब नहीं मानेंगे, সবাই কিন্তু কৃষ্ণকে মানবে না। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि कृष्ण को। কাকে মানবে? ওরা তো ক্রাইস্টকেই ফাদার বলবে, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। শিব বাবা যখন আসেন তো আমাদেরকে কি করেন? অ্যাডপ্ট করে নেন। कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने। सिर हथेली पर रख बाप के बने अर्थात माथा ऊपर की करलो, हाथ दिए, हथेली মানে हाथटा दिए और बाबार আমরা হয়ে গেলাম। उनके डायरेक्शन पर चल पड़ना अर्थात बाबार श्रीमते আমরা डायरेक्शन अनुযায়ী চলছি। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं। बाबा के আমরা কি মত দিব? বাবা তো স্বয়মে সব কিছুর মধ্যে ভরপুর সাগর। সাগরের মধ্যে যায় আর কোনো তালাব বা পুকুর যায় মিলে কি করবে? তো সাগর তো নিজেই সাগর, সব কিছুর জ্ঞানের সাগর। বাবাকে কি আমরা জ্ঞান দিব, তাই না? কিন্তু কোনো সময় দেখা যায় যে আজকাল বাচ্চারা মা বাপকেও জ্ঞান দেয়, তো ওই রকমই আছে যে বাবাকেও কিছু বলার জন্য ভাবে। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা বাবাকে কি জ্ঞান দিব? বাবা তো সব কিছু জানে। তো এই জন্য বাবা বললেন ওয়া খুদ মত দেনে वाला है, यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे वो राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते कि यह करो। ब्रह्मा बाबा केও शिव बाबा मत दें, तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा से है। আমাদের সম্বন্ধটা হইল শিব বাবার সাথে, শিব বাবার সাথে আমাদের সম্পর্ক। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। কারো মধ্যে যদি কোনো খারাপ গুণ আছে তাকে বাবা বলেন দেখার জন্য না, তার অবগুণটাকে আমাদেরকে দেখতে হবে না। শ্রীমত पर चलना है। বাবা শ্রীমত কি দিলেন? কারো অবগুণ দেখো না, যদি দেখবা তো তোমার মধ্যে আসে যাবে। शिव बाबा तो निराकार, उसका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे, है ना? এখন আমরা পুরানা ঘরে আছি, পুরানা বাড়িতে, পুরনো বাড়ির অবস্থা খারাপ, জল পড়ছে, কোথায় ঝড় নিয়ে যাচ্ছে, কোনো না কোনো পরিস্থিতি খারাপ, এখন আমরা নতুন বাড়িতে যাব। শিব বাবা कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा। বাবা তো এখানে থাকবে না মহলে। मैं तो इस समय थोड़े टाइम का लिए आता हूँ। অল্প সময়ের জন্য বাবা আসেন, এটা না কি সব সময় বাবা কথা বলবেন, বাবাকে স্মরণ করতে লাগবে। এই সময়ও পার হয়ে যাবে, এই সময়ও হাতে থাকবে না। तुम सच्चे सच्चे रूहानी सोशल आर्मी हो। रूहानी रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। रूहानी रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। হুবহু ড্রামা প্লেন অনুসার। বাবা জি কিছু বলছেন ড্রামা অনুযায়ী বলছেন, আগেও বলেছিলেন এখনো বলছেন। হুবহু ड्रामा प्लेन अनुसार कल्प पहले माफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देंगे। आगे যেটা দিয়েছিলেন ওইটাই দিবেন। রাত দিন গুহ্য बातें सुनाते रहते हैं। গুজ্জ গুজ্জ বাবা কথাগুলো শুনান। নয়া कोई समझ না सके। বাবার এই রহস্যগুলা নতুন কেউ আসে ঝটকিনে বুঝতে পারবে না। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन
गंभीर बातों को समझते नहीं हैं। बहुत गभीर है, जेमन बोले ना सागर के ऊपरे देखले किछु बुझा जाए ना, तो शिव बाबा हलेन सब किछुर सागर, ज्ञानेर सागर, शांतिर सागर, आनंदेर सागर। तो सागरेर যত আস্তে আস্তে করে গভীরে যাবেন তখনই বুঝতে পারবেন। তো বাবা বলেন 35 বরস 40 বরস হয়ে গেল, কিন্তু ওনাকে ঠিকভাবে ওই গভীরটাকে বুঝতে পারে নাই, বুঝার চেষ্টা করছে। বাপ তো রোজ নয়া শোনাতে रहते हैं, নতুন নতুন বাবা কথা শোনাইতে থাকেন। कराची से लेकर मुरली चलती आई, कराची থেকে শুরু হইল মুরলি শোনানো, সে চলছে। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, আগে বাবা মুরলি এইভাবে যখন আমরা দেখতে পারলাম দাদি হিদে মোহনী দ্বারা, তো ওইভাবে তো বসে বাবা মুরলি চালাইতেন না। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। ভাবুন বাবা কত পরিশ্রম বাচ্চাদের জন্য করছেন। 10-15টা पेज लिखतें, बाबा लिखते थे, फिर उसकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, भक्ति मार्गे तो ওই শাস্ত্রের কাগজগুলো কত संभाल করে। दिन प्रतिदिन किताबें बनती आती है, কত किताब হয়ে যায়। कितनी बायोग्राफी बनते जाती है, वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। फेंक देते हो মানে কি, একবার পড়ে নিলেন তো লাগে না, এটা পুরনো হয়ে গেল। একদিন পুরনো মুরলি আসলো না কোনো কারণবশ, আজকে তো ক্লাসে পুরনো মুরলিটা শোনানো হইলো, মানে কথাটা কেমন হয়ে গেল, পুরনো মুরলি। কিন্তু ভক্তি মার্গে ওই শাস্ত্রটা মানুষ পড়ে যাচ্ছে, যে আসতেছে সেই পেজ খুলতেছে আর পড়তেছে। কেন কি বাবা গরম গরম খাওয়া দেওয়া শুরু করে দিলেন, যে এই জন্য এটা হয়ে গেল, ঠান্ডা হইলেই ঠান্ডা বাসি হয়ে গেল। কিন্তু কোনো সময় দেখবেন বাসি জিনিসও খুব ভালো লাগে। মুরলিটা পড়েছেন, আরেকবার শুনবেন তো আরও বেশি ভালো লাগে, আরেকবার পড়বেন তো আরও বেশি ভালো লাগবে। এই জন্য আমরা জানি যে আমাদের দাদিজি, জানকি দাদিজি কতবার মুরলি পড়তেন, বারবার পড়লে বারবার ওটাতে নতুন নতুন কথা বের হয়। কিন্তু একদিন কোনো কারণবশ মুরলি শুনতে পারলেন না, বাড়িতে পুরনো মুরলি পড়লেন, মন খারাপ করা যাবে না। কেন, ওর মধ্যেও অনেক কথা থাকে গেছে, সাগরের কথা কোনো সময় শেষ হয় না। नहीं तो हमेशा के लिए कहेंगे ये, परंतु जानते नहीं यह सब विनाश हो जाएगा। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, अल्प समय জন্য এগুলা বানানো হচ্ছে, फिर यह दब जाएगा, फिर वहाँ न शास्त्र न चित्र आदि कुछ नहीं, ওখানে তো কিছু দরকার পড়বে না না, नहीं रह सकता। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद ही होगा, যেটা হয়ে যাবে ওটার কল্প বাদই পাওয়া যাবে। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ में रखा हुआ छोटा सा था, ग्रंथ अल्प छोटो छिलो, अब बड़ा बनाए हैं। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं, नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठा है ना, बाप बैठ समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। बाबा নিজেই বাচ্চাদেরকে বলে দিচ্ছেন যে ভক্তি মার্গে আমি কি করি। ভক্তি মার্গ में भी इंश्योरेंस करते हूँ, सवार इंश्योरेंस करिए दें। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं, कहते हैं इसने दान पुण्य किया। ईश्वर अर्थ ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया। भक्ति मार्ग में धर्मशाला बहुत होती है, धर्मे नामे बड़ो बड़ो धर्मशाला करा हुए,
ईश्वर अर्थ वो धर्मशालाओं करे तो ईश्वर नाम निये ही करे। कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते तो फिर बाप समझाते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए फल देता आया हूँ, माने दीते ही आसছে। अच्छा हुआ बुरा फल तो मिलता ही है ना, ভালো কর্ম করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে, খারাপ কর্ম করলে খারাপ, কিন্তু ভালোকে ভালো খারাপকে ফল পাওয়াই যাবে। कितना इंसिडेंट हुआ, जो कुछ कर्म करते हैं उसका नुकसान उसका अनुसार फल मिलता है। जे যেমন কর্ম করে তার অনুযায়ী ফল পায়। আর বাবা তো কি করলেন, সবকিছু বাচ্চাদের নামে সবকিছু করতেছেন। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख होगा ही नहीं। बाबा एमन कर्म शिखा दिच्छे आमादेरके जेखाने कोनो दुख होबे ना, और माया भी वहाँ नहीं होती, मायाओ थाकबे ना। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करेंगे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना भी खराब कर देते हैं। लौकिके कोनो कोनो समय ट्रास्टीरा अन्येर निजेर जीवनटाओ बर्बाद करे देय। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है, सब संबंध ही हইল बाबा साथे। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। लौकिक बाबा माओ की करे सब किछु बाबा दिए जाए। मैं तो स्वर्ग में कुछ नहीं लेता, स्वर्ग बाबा जानी ना, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं, माँ बाबा बोलছে मैंने भी इंश्योरेंस कर दिया, तन मन धन बाबा की सर्विस में सब कुछ इंश्योरेंस कर दिलो। सिंध में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसा दान रूप में, माने दान करार रूप, दाता रूप, देवा रूप हाथ, पहला पूरा वह पहुंचेंगे, जार दातार हाथ সেই आगे पहुंचावे। बाप को सब इंश्योरेंस करते हैं ना, बाबा नामे सब इंश्योर कर दिलो। 2 मुट्ठी चावल दिया तो महल मिल गया। अभी देखो मकान बनाना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छा महल मिलेगा। बाबा काछे चिठी दिलो, बाबा आमी ये टाका पाठाइलाम, आमार एकटा ईट লাগিয়ে दिओ। बाबा की रिटर्न करलेन, तुम्हारा भविष्यते तो महल मिलेगा, क्योंकि तुम गरीब हो, मैं हूं गरीब निवाज। गरीबों का 1 रुपया तो साहूकारों का 1000 रुपया। जार काछे आछे আর ভাবলো কি এই সবাই তো এটাই দিতেছে, আমি ওইটুকুকে দেই, কোনো ব্যাপার না, তো এটা হবে না। যার কাছে আসে বাবা একদম ক্লিয়ার কাট বলে দিলেন, কি বললেন যে গরিবদের 1 টাকা আর সাহুকারদের 1000 টাকা ইকুয়াল হয়ে গেল। दोनों को एक ही मर्तबा मिलता है। गरीब के 1 টাকা বের করাটাও
খুব টাফ, আর শাহুকারের জন্য 1000 করা বাইর করাও কোনো ব্যাপার না। शाहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, इसके पास तो कुछ नहीं था, मम्मा काछे तो किछु छिलो ना, गरीब घर की थी फिर भी नंबर 1 चली गई। मम्मा गरीब घरेर छिलेन किन्तु मामा कत मामार तो আমরা সব কিছুতে কি দেখি, মাম্মা সব সময় হুকমি ছাড়া কিছু করতেন না, এত আজ্ঞাকারী আর বাফাদার ছিলেন। যজ্ঞের রক্ষক মাম্মা নম্বর 1। এই জন্য বাবা কি করলেন, ভবিষ্য মহারানী লক্ষ্মীপদ মাম্মা নিজেই নিয়ে নিলেন। তো কিছু দেন নাই কিন্তু সব কিছু সামাল করে রাখছেন। इतने सब कुछ दिया, इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा बोलছেন কি কত आश्चर्यजनक এটা खेल। बहुत मीठा भी बनना है। सॉरी, कितना वंडरफुल खेल है, तो कभी किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। কোনো কথাতে কোনো সময় ভিতরে সন্দেহ আনতে নাই। बाप दादा कम थोड़े ही है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेना है। बाबा श्रीमत निये चलते लगे, नहीं तो माया बहुत नुकसान कर देती है। यदि श्रीमत जगह मन मत লাগিয়ে চলবে তখন কি করবে, माया आस्ते করে সরিয়ে নিয়ে যাবে। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं बाबा को। बाबा কত ধরনের বাচ্চাদেরকে डायरेक्शन दें। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा के सटीक भावे लिखले बाबा सब धरনের संभाल करबेन। बाबा को बहुत ख्याल रहता है। बाबा के सब समय बाच्चादेर प्रति एकटा ध्यान थाके। कहाँ यह बच्चे चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलवेड गॉडफादरली स्टूडेंट। गॉडफादर আমরা ছাত্র হয়ে গেলাম। भगवानो आज भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है गीताते। कृष्ण भी सभी मनुष्य से ऊंचते ऊंच ठहरा। कृष्ण সবার থেকে উঁচু, মানুষের মধ্যে সব থেকে উঁচু হইল শ্রীকৃষ্ণ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस, फर्स्ट राजकुमार। कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं देते। कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बच्चे से युवा, फिर वृद्ध अवस्था होती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी सामान कहते हैं, माने ब्रह्म ज्ञानी बालक हইলো ब्रह्म ज्ञानी। बच्चे से कोई पाप नहीं होता, এই জন্য বাচ্চাকে महात्मा बोला है। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उसका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसे कोई नहीं होगा जिससे यह सब बातें पता हो। क्यों जाने ना दुनिया। ब्राह्मण है उत्तम, ब्रह्मांड मुख वंशावली ब्राह्मण हमरा सबदिके सर्वश्रेष्ठ उत्तम। तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, सतयुगे
ईश्वरीय संतान बोले बोला जाबे ना। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अनमोल जीवन। এই জীবনটা অতি দুর্লভ, কেন কি এই জীবনের সাথে অন্য জীবনের কোনো তুলনা নাই। सबको तो हो ना सके, সবার এটা भाग्य নয়। यह ड्रामा ऐसे बना हुआ है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। कल्प पहले মানে 5000 আগে যারা পড়ছে তারা ঠিকই পড়বে। भगवान तो जरूर भगवान भगवती पद दिया होगा ना, भगवान भगवती तो पैदा करेंगे ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन। भगवान के भगवान भगवती बोला जाबे ना। भगवान तो एक और भगवान हইলে निराकार। निराकार की महिमा साकार की थोड़े ही महिमा होती है। निराकारेर साथे साकारेर कोनो तुलना नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसे बनाया। लक्ष्मी नारायण के जे तैयारी करलो से निराकारे तैयारी करलो। अब राजयोग सीख रहे हैं। এই সময় राजयोग सीखतेছেন। राजा स्थापना हुई तो उस समय विनाश हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है। आगे तो আমরা খেলতেছিলাম, এখন खेल पूरा होबे এই জন্য बाबा আসছেন। फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मुझ गए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। যত শাস্ত্র আছে সব শাস্ত্রদের রহস্যগুলা বাবা আসে আমাদেরকে বলে দেন। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। मास्टर नॉलेजफुल, ज्ञान सागरेर सन्तान আমরা হইলাম मास्टर ज्ञान सागर। आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, यह बाप की महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भारत হইল সবথেকে বড় तीर्थ। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम हो गई है। गीताते श्री कृष्णेर नाम देवार जन्य सबकिछु उलट पुलट হয়ে গেছে। नहीं तो अभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर नीचे आते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। सबाई तमो प्रधान होबे। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। আমাদের বাচ্চাদের জন্য বাবা নতুন দুনিয়া বানাচ্ছে। उसमें खुद नहीं आते, নিজে আসবে না। यह सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है, একদম বাবা ক্লিয়ার কাট বলে দিচ্ছেন। কোনো লুকানো ঝুকানো ব্যাপার না। তোমাদের জন্য আমি রাজ তৈরি করে দিচ্ছি। राज्य भाग দিয়ে আমি কিন্তু থাকবো না। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, মানুষ তো নিজের জন্য করে। फिर कहते हैं कि हम निर्माण निष्काम करते हैं। মানুষ করে নিজের জন্য। আজকে একটা ধর্মশালা বানায়, আর আমরা যাই ধর্মশালাতে, ওখানে অসুবিধা হয়। আজকে এইখানে বাবা ঘরে যেটা সেবা করে সবাই তো করে না, लेकिन কেউ বলবে আমরা তো নিষ্কাম সেবা করি, কোনো কামনা নাই। কিন্তু এক সময় হয় না, বাবা ঘর ভালো হইলে যায় এখানে যোগ করতে পারবো। বাবার ঘরের কমসে কম কিছু না করলে তো বাবার ঘরটা ভালো হয়েছে ওটা শুনেও মনে আনন্দ পাওয়া যায়। তো বাবা কি বলেন, একটা বাবাই হইল নিষ্কাম সেবাধারী, যার কোনো কামনা নাই। सबको तमो प्रधान बनना है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। उसमें खुद नहीं आते,
सब कुछ तुम बच्चों के लिए है, हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों के लिए अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूं, तुम्हारे लिए बैकुंठ लाया हूं। আমাদের জন্য বাবা হাতে করে কি নিয়ে আসছে? বৈকুণ্ঠ। লক্ষ্মীকেও বাবা মা যখন কোথায় বাইরে যায় তখন কি করে? ফেরার সময় কিছু নিয়ে আসে, বাচ্চারা ঘরে আসে, হ্যাঁ না? বাচ্চারা বাড়িতে আসে, কিছু নিয়ে যেতে হবে। তো বাবাও যখন আসছেন তখন আমাদের জন্য কি নিয়ে আসছেন? হাতে করে বৈকুণ্ঠ নিয়ে আসছেন। बच्चों को बाबा কি করেন? बहिष्टाई নিয়ে আসে দিয়ে দেন। वह लेने लिए ऐसे लायक बनना चाहिए। বৈকুণ্ঠের রাজভাগটা নেওয়ার জন্য বাবা বলতেছেন লায়ক হইতে লাগবে। स्वर्ग का मालिक बनना हथेली पर बहिष्ट मिलता है, हाथेर उपरे स्वर्ग पावा जाइतेছে। सेकेंड में जीवन मुक्ति, सेकेंड में बादशाही, सेकेंडर खेल। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा सेकेंड में बैकुंठ में ले जाते। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है, ब्रह्मा बाबार हाथे किछुई नहीं, सब किछु शिव बाबार हाथे आछे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूं, मैं नहीं करता हूं, বাচ্চাদেরকে দিয়ে দিল सब। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से क्या करूँगा? যখন দিব্য দৃষ্টি, যখন ভক্তি মার্গে যাবে, যখন পূজা প্রবন্ধ করা শুরু করবে তখন বাবার দিব্য দৃষ্টিটা কাজে লাগবে। बहलाना पड़ेगा। ওই দিব্য দৃষ্টি দ্বারা বাবা কি করে? বাচ্চাদেরকে बहलाना মানে কি? বাচ্চাদেরকে খেলনা দিয়ে মা বাবা যেমন ও খেলনার মধ্যে রাখে দেয়। আজকাল মোবাইল দিয়ে দিলে বাচ্চা খেলতেছে, মোবাইল দিয়ে মা কাজ করতেছে। তো বাবাও কি করেন? দিব্য দৃষ্টি দ্বারা কোনো সাক্ষাৎকার করাইলেন, বাস বাচ্চারা ওর মধ্যে খেল করতেছে। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसे बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक बार मिलते हैं, कल्प कल्प एक बार। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, सब किछु बनी बनाई আছে, आगे থেকে रेडी करा আছে। जो कुछ होता है ड्रामा में नुद है, যে কিছু হইল সব ড্রামাতে আছে। उसको साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा क्या इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारा एक पैसा भी नहीं गंवाता हूं। एमन मैग्नेट जे सब किछु ठीक ठाक रखे। कौड़ी से तुमको हीरे लायक बना देता हूं। हमरा कौड़ी तुल्य हो गेছিলাম और बाबा हीरे तुल्य बनाচ্ছে। यह सब शिव बाबा कहते हैं। इसके द्वारा करण करावन है निराकार, निरहंकारी वह है। करण करावन हार होइलेन निराकार और निरहंकारी होइलेन बाबा। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो पा धरो, एरकम किछु बोलছে না। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिसको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। যাকে বাবা স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলেন তারাই আজকে দুঃখ পেয়ে কি হয়ে গেছে? एकदम दुखी। भोग सुख भोगते भोगते आज के एकदम दुखी। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई भी धर्म वाले को मिलता नहीं। अन्य धर्मेर যতই আছে ওরা এত সুখ পায় না। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों औरों ने क्या किया। भारतवासी এত सुख पाइलो अन्यरा पाए नहीं केन? अरे इतने ढेर मनुष्य है,
सब तो नहीं आ सकते, सबाई तो आसबे ना, यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखलाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हुआ हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्म का पाठ बजाए अब फिर से हम घर जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया है, सर्प का मिसाल है। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। बाबा बोले दिलेन जे एदिके मानुष की बोलतेছে ड्रामा पूरा हुए पुरानो হয়ে গেছে, শরীররূপী চোলা পুরনো হয়ে গেছে, ওখানে এই খালটাকে ছাড়তে হবে। সন্ন্যাসীরা কি বলে দিল आत्ताई परमात्मा। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं। यही अनुभूति करते करते शरीर छाड़े देय, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। इसमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। सन्यासीদের মধ্যেও কোনো কোনো लोग खूब तीक्ष्ण থাকে। शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उसका वातावरण अर्थात वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है, एकदम वातावरण शांत हो जाए। तो तुम जानते हो कि यह पुरानी शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है। सन्यासीদের মধ্যে এটা ভর্ম, মানে ওদের মনের মধ্যে একটা দুবিধা যে আত্মা যখন বের হয়ে যায় তখন ব্রহ্ম মধ্যে মিলিন হয়ে যায়। লীন হয়ে গেল তো হবে না, होए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। आज के सार इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है। যে ড্রামার মধ্যে আমরা পাঠ বাজাচ্ছি তাকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। क्योंकि बनी बनाई बन रही, सब किछु आगे থেকেই বানানো আছে। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है, কোনো কিছুতে মনে মধ্যে সন্দেহ আনতে নাই। नंबर दूसरा, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसीलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है। बाबा साथे भालो करे कनेक्शनटा रखते होबे, पूरा समाचार देना है। बाबा तो जानेनी, बाबा तो सब किछु जानेन आमार की, এটা হবে না। বাবা জানলেও বাবা ওখানে আসছেন। লৌকিকে মধ্যেও দেখবেন বাবা মা কোনো বাচ্চারা কোনো ঘটনা করেছে, বাবা মা জানে গেল আগেই, কিন্তু বাবা মা কি বলে দেখি তো বলে কিনা, নিজের মুখে বলে কিনা, এই অপেক্ষায় থাকে। তো আমরা বাবাকে বলবো যে বাবা সব কিছু জানেন, তো কত বাচ্চা কার কার বাবা বলছে সবার হিসাব নিতে থাকবেন। এই জন্য নিজের কাহিনীটা নিজে বাবার কাছে বলতে হবে, লুকিয়ে রাখলে হবে না। বাবাকে বলে অবিনাশী সার্জন, সার্জনের কাছে যায় নিজের বিমারিটাকে যদি ছিপায় রাখা হয় তখন ট্রিটমেন্ট হবে না। তো বাবার কাছেও যদি বাচ্চারা খোলাখুলি কথা না বলে তখন তো আর বাবা কার কার হিসাব দেখবে, है ना, এতগুলা বাচ্চা। এই জন্য বাবা বলে দিলেন कि বাবার কাছে সমাচারটা লিখতে হবে, দিতে হবে। पूरा पूरा कनेक्शन रखना है। कनेक्शनटा लूज कनेक्शन रखा जाबे ना, लूज कनेक्शन थाकले लाइट ठीक भावे जले ना। पूरा समाचार देना है, ठीक ठाक भावे बाबा के हिसाबटा दीते होबे। वरदान, कम शब्द द्वारा ज्ञान के सर्व राज को स्पष्ट करने वाले, कम कथा दिए ज्ञानटाके स्पष्ट करे देवा। यथार्थ शक्तिशाली भव, कम कथा मध्य ज्ञानटाके स्पष्टीकरण करा। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है
उतनी क्वांटिटी कम होती है, अल्प থাকে। ऐसे ही जब आप अपनी निवारण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो कम शब्द लेकिन यथार्थ, शब्दटा कम होवे लेकिन यथार्थ होवे, और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजार शब्द का रहस्य समाया हुआ होगा। একটা কথাতে অনেক কথা বোঝা যায়, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। ব্যর্থ যে চলে, बहुत কথা বলতে হয়, সেটা ऑटोमेटिकली कम हो जाবে। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राज को स्पष्ट कर सकेंगे। विस्तार समाप्त हो जाएगा, विस्तारित भावे जेटा कथा सब समाप्त हो जाए। स्लोगन, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। तो अंतर दिके बाबा बोलते होबे, বাইরে থেকে শুধু বাবা বললে হবে না, অন্তর আমার কতটুক বাবা বলছে ওটা আমাদেরকে দেখতে হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।